human. क्या हुआ था सर देपसांग में? Depsang में what happened was the Chinese उन्होंने एक दिन देपसांग में एक नया कैंप बसाया जी। और एक बार जो जहाँ कैंप नहीं था और जब उन्होंने कैंप बसाया तो हमने रिएक्शन में अपना कैंप नज़दीक में बसाया, फिर स्टैंड ऑफ हो गया। फिर ये पूरी बात नेगोशिएशन हुई कि आप वापस जाओ और तभी हम वापस जाएंगे। तो हमने थ्रेटन भी किया कि हम केचियांग का दौरा रद्द कर देंगे। देखिए नेगोशिएशन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती। I love this smile of yours. You don't respond but you respond. Please continue sir. तो देखिए हमारी चुनौती क्या है वहाँ। चीन 2020 से, मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप मुझे पता है कि आप वहीं we will come to that. तो in 2020 China has moved troops and मैंने publicly कहा है कि in violation of agreements. There is only one answer for this. Answer is to counter deploy. Okay, that if any country, any neighbor makes any move, you have to be firm. There cannot be compromise. There has to be a counter response until the matter is sorted out. So what has happened from 2020, और उन्होंने तब किया जब यहाँ कोविड लॉकडाउन चल रहा था जी। तो ये मैं कहूँगा ऑनेस्टली, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, I cannot imagine any other government which would have moved in the middle of COVID so many troops with that speed which hit it. And with very clear instructions that you have to stand your ground. Okay. So since then हमारी नेगोशिएशन जारी है। जो पहला जो नेगोशिएशन हुआ, माने कमांडर्स तो मिलते रहे। नहीं, वो तो सर हम गलवान पे आएंगे डिटेल में। मैं थोड़ा देपसांग पे इसलिए समझना चाह रहा हूँ बिकॉज वी फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग रिमार्क ऑन योर स्टाइल ऑफ वर्किंग। वन Chinese officer said to the Hindu correspondent Anand Krishnan that he does not talk like diplomats, he talks like soldiers. What do you make of this remark? You're talking about Depsang 2013. You were posted there as उच्चायुक्त। नो देखिए, कभी जलेबी बनाने का समय होता है, कभी कभी सीधी सीधी बात करने का समय भी होता है। So sometimes with the military it is better to be very direct with them. What was the brief from UPA government to you during the Depsang crisis? See, the brief is always from any government, any if any attempt is made to change the status quo or to violate the LAC, your brief is always to stand up to it and to ensure that status quo is maintained. I mean, this is nothing to do with politics. Any government at any time in India will give that same order to its people. Now come to Doklam. We'll come to Galwan after that. Doklam में क्या हुआ सर? No, in Doklam was a different issue because the effort was made to... Your good friend Gokhale was Uchayukt there and you were foreign secretary. Correct. Effort was made to change the tri-junction. See, we had an agreement, tri-junction will be decided by mutual three-party. India, Bhutan and China. तो वहाँ कोशिश हो रही थी कि tri-junction will be determined by them. Naturally, we stood our ground and after the standoff it was agreed, अच्छा आप वापस जाएं, हम वापस जाएं, so the tri-junction is settled by mutual agreement. हमें ऑपरेशन जूनिपर लॉन्च करना पड़ा था। Were we surprised or we were anticipating this kind of advancement? नहीं, see, in what happens जब कोई पड़ोस, you have the kind of border differences which we have. You have, army अपनी planning करती है, they look at different contingencies, you keep watching, तो that is in the nature of things. And once we sat on Dokla Pahadi, we had a strategic advancement. Did that help? No, we had a face-off. See, we had a face-off and, both sides wanted to resolve the face-off finally, which is what happened.
And then they ask who delivered Doklam, Vijay Gokhale or Jaishankar? No, nobody. The Indian Army delivered Doklam and the Narendra Modi government. Look, इसको आप personalize नहीं करिए. This is not the way we work. Sir, You know, I strongly, you know, my job is to ask ताकि जिनको भी नहीं. confusion है उनको clarity मिल जाए. See, in any situation, everybody, you know, the leadership has to be clear. The forces have to deliver on the ground. Okay, everybody between has some part in it. सबका अपना अपना कुछ योगदान होता है. Team India. No, you're correct. It is the nature. ये देखिए ये system है. This is not any. It's not a single person. This is a ministry, and not just this ministry. There is this ministry, the defense ministry, there is the military. There may be, you know, different services involved. So there are so many people involved in it. तो इसको आप personalize ना करें. बिल्कुल नहीं. 19 फरवरी 2024 तक हमारी कोर कमांडर लेवल की 21 मीटिंग हो चुकी हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गलवान. हाँ. स्थिति क्या है भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर आज की तारीख में जब हम आपसे मुखातिब हैं? स्थिति ये है कि कुछ जगह देखिए, स्थिति के पहले मैं आपको एक किस्म से मैं प्रॉब्लम बताता हूँ प्लीज. हाँ, क्योंकि आपको वो समझना चाहिए. सर, क्या हुआ कि 2020 में 2020 मई के पहले वहाँ जो नॉर्मल सिचुएशन ये था कि दोनों फौजें जो हैं उनकी अपनी अपनी बेसेस होती हैं. वो बेस से बाहर निकल के पेट्रोलिंग करते हैं और पेट्रोलिंग करके वापस बेस में चले जाते हैं. हाँ, 2020 में वो जैसे मैंने कहा कि जो पहले के एग्रीमेंट जो थे उसका उल्लंघन करते हुए चाइना जो है उन्होंने काफ़ी बड़े संख्या में अपनी फ़ौज जो है वो LAC पे, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है कि LAC के पास भी उस लेवल से ज़्यादा आपको ट्रूप्स नहीं लाना चाहिए बिना बताए. स्ट्रेंथ को लेके भी है. हाँ. सिर्फ बॉर्डर को लेके नहीं है. हाँ, तो अब जैसे और जब उन्होंने डिप्लॉय किया तो हमने काउंटर डिप्लॉय किया. और जब काउंटर डिप्लॉय होता है कि दोनों फौज जो हैं अपने बेस से निकलकर एक किस्म से टेम्परेरी कैंप बनाते और उनकी जो दूरी जो है बहुत घट जाती कि स्ट्राइकिंग रेंज में है. हाँ, बहुत ही नज़दीक हो जाते. और दिस यू आर सीइंग अप्रैल मई. ओके. हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मई. हाँ, तो ये अब जो गलवान में भी व्हाट हैपेंड वाज बोथ ऑफ अस हैड कम फॉरवर्ड. द सिचुएशन नाउ इज सबसे ज़्यादा डेंजर खतरा जो है ये इस क्लोज अप फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट से. हाँ, तो ये जो क्लोज अप तो अभी जो हम जब कहते हैं कि सोल्यूशन निकलना चाहिए मिलिट्री कमांडर टॉक से कि दोनों साइड जो है अपने बेसिस में चले जाए और ये दूरी जो है इसको नॉर्मल जो पहले का जो अपने दूरी जो थी उसी को रखें, यथास्थिति. हाँ, जैसे पहले थी. हाँ. तो कुछ जगह जो है इसमें हम मैं कहूँगा गलवान में सबसे पहले पंगोंग सो में जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, तो ये 4 जगह में जो है यहाँ सोल्यूशन निकल चुका है. वी हैव एग्रीड टू क्रिएट अ बफर. नो, वी हैव अग्रीड. देखिए ये माने इफ यू हैव, इट्स नॉट क्रिएटिंग अ बफर इज नॉट द राइट वर्ड आई वुड यूज. इन द पास्ट गोइंग बैक, जो पहले जो ऐसा समझौता कभी हुआ था 1958 में हुआ था, बाराहोटी में हुआ था. और जब भी ये तनाव का सिचुएशन होता है, क्योंकि तनाव कैसे बढ़ते हैं जब पेट्रोलिंग शुरू होती है और पेट्रोल से एक दूसरे से मिलते हैं. तो जो सुमदरोंगचू में भी ये हुआ था कि एक जोन जो है आप यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करेंगे. बाराहोटी में भी एक जोन है जहाँ ये तय हुआ था कि हम यहाँ पेट्रोलिंग नहीं करेंगे. हाँ. जी. तो अभी जो है पेट्रोलिंग म्यूचुअल, क्योंकि ये खाली ये नहीं कि हम नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे. हाँ, दोनों साइड्स नहीं कर रहे. तो ये 4 जगह ये सोल्यूशन निकल चुका है. अभी जो बाकी 1-2 जगह हैं जहाँ पेट्रोलिंग पे विवाद है
कि कौन कहाँ तक आएगा, कैसे रोकेगा, और अगर फेस ऑफ होगा तो उसमें खतरा क्या है। तो इस पे अब अगर बातचीत चल 15-16 जून को क्या वो हमारी टेरिटरी में घुस आए थे चीन की सेना? सॉरी 15-16 जून की दरमियानी रात क्या चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर घुस आई थी? नहीं, जब 16 बिहार के ऑफिसर्स को और जवानों को शहादत देनी पड़ी। जो गलवान में जो घटना हुई वो एक एरिया में हुई, हाँ, वो एक एरिया में हुई, और मैं कहूँगा कि उसके उपरांत ये समझौता हुआ कि वो अपने कैंप वापस जाएं, हम अपने कैंप वापस, क्योंकि सर हमने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड चलाया 29-30 अगस्त को चुशूल सेक्टर में। We were very aggressive and they were surprised with our aggression. No, see, it's like this. It's not we were very aggressive. What happens is, what has been happening, मैं आपको again I'm saying, both because they have come forward from the traditional patrolling basis, हाँ, और अपना ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न भी होता है, उससे वो अलग हो गए हैं. We have also responded in kind. So this is the situation of that is the danger. The danger is both of us are forward deployed, but we are deployed in response to his deployment. They provoked, now we are responding. Yes, correct. And we have stood firm all through. You know, I mean, this has been very clear to all of us, to army, to diplomacy, to everybody, that on this there can be no compromise. Let's stand firm. अरुणाचल प्रदेश में भी सर ऐसे ही सीन है क्या? क्योंकि बीजेपी सांसद हैं तापिर गांव, उन्होंने ट्वीट किए, उसके बाद से लगातार बात नहीं, वो लुक, मैं कभी कभी देखता हूँ, आई फाइंड फॉर मी द रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द आर्मी. कभी कभी लोग कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं, उसको बड़ा चढ़ा के, लोग नहीं है, सांसद हैं देश के, लोकसभा के सांसद हैं. नहीं, मैं मानता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे हु इज डिफेंडिंग माय बॉर्डर? आई एम पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट. मुझे किसकी सुननी चाहिए? मुझे आर्मी की सुननी चाहिए ना. सो जब भी कुछ आता है, आई मीन लेट मी टेल यू, हाँ, सांसद सदस्य है, कुछ ऐसा कुछ होता है, वी आस्क द आर्मी. तो मैं कहूँगा, आई मीन क्योंकि आप पूछ रहे हैं, आई विल गिव यू अ वेरी क्लियर आंसर. आई डोंट थिंक देयर इज बीन एनी ऐसा कुछ नहीं हुआ अरुणाचल प्रदेश में विच वुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न. जैसे 30 जनवरी 2024 को चुशूल के काउंसलर हैं कोनचोक स्टांजिन, उनका भी ट्वीट है कि चीनी सैनिक घुस आए थे लेकिन लद्दाखी गडरियों ने उनको भगा दिया. ये इसी बरस की घटना है. वो ट्वीट है, साथ में तस्वीरें हैं, और उसमें वो लिखते भी हैं, इट इज हार्टनिंग टू सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट मेड बाय Corps in border area of eastern Ladakh in facilitating the graziers and nomads to assert their right in traditional grounds along the north bank of Pangong. I would like to thank Indian Army for such strong civil-military relations and looking after the interest of the border area population. इसको थोड़ा समझा दें. नहीं, देखो, I think we have a situation today where China is putting pressure in the border areas along the line of actual control. Okay. We are responding by counter deployment. Okay. I think in such a situation, everybody in the country, we should support the military in what they are doing. We should have faith in what the military is doing. For me, even people who comment, see, many people who comment, उनको पूरा समझ नहीं है. I'm not pointing to any single person. You know, even see today, if अगर आप मेरे से पूछेंगे, you will say, explain the situation there, I will take the advice of the military, because only military has the full picture. They are better equipped and they have the complete information. And that is their job, that is their responsibility. So at this time, to me, the most important thing is when you are under pressure, you know, or under effort is being made by a neighboring country in violation of agreements to create problems for you on the border, you must respond. You must be firm. You must trust your army. The army is doing its job. You know, people in this country should appreciate, I mean, what it is like to be deployed out there.